क्रिप्टो डू फंडामेंटल्स रियली मैटर? बोल रहे हो मीम कॉइन्स 1000x हो रहे, 2 महीने में 3 महीने में, कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ फ्रीडम भर रहे, ठीक है. सो हाउ डू यू नेविगेट दिस स्पेस फंडामेंटली? If you want a freedom to launch anything, there will be a Libra coin. If you want to avoid a Libra coin, you need some regulation or self regulation. Correct? में आया जब सोलाना 235 से 200 पे आया, लोगों ने बोला बाय द डिप. फिर 180 पे आया, फिर लोगों ने बोला बाय द डिप. अभी साला 135 पे आ गया, फिर भी बाय द डिप. कब तक बाय द डिप करेंगे? People are calling this the worst bull market ever. Has the market topped already, or you think there are one or two more pumps? जो शार्क टैंक में जो डील्स आती है ना, वो आपको मेरे को नहीं मिलती है. क्यों नहीं मिलती है? वो 10-20 लाख तो हम भी डाल सकते हैं. I think AI will improve blockchain like anything, and the reverse will also happen. कि blockchain will empower AI also. मेरा consistent view रहा है बहुत टाइम से कि BTC is not crypto. BTC को क्रिप्टो से निकाल देना चाहिए. Solana at 135. I'll buy Good it. price. I'll buy it. If you want a straight answer, I'll buy it. Do you think currently is a good time to enter the market? The content of this podcast is for informational and entertainment purposes only. We are just two friends sharing our thoughts, opinions, and experiences about cryptocurrency and the broader crypto space. Nothing discussed in this podcast should be considered as financial, investment, legal, or any other form of professional advice. Let me start by a quote which I remembered you telling me. तुमने कहीं पे पढ़ा था, in crypto everyone makes money except for me. ये आजकल मैं बहुत ज्यादा लोगों से सुन रहा हूँ कि यार साला आजू बाजू में आई गो ऑन ट्विटर, आई सी पीपल मेकिंग 100x, 200x, 50x, and my portfolio is down, negative, especially in current times, especially in last 1 month. And in this situation, another interesting part is people are saying buy the dip. Now when you buy the dip, your token falls more. Then people say buy और एक और dip buy करो. Then you buy one more dip. And then you see the token is falling further down. And then you try to sell it. Then it goes up. The round tripping part, you know. Plus, I also wanted to discuss in this podcast today about fundamentals. In crypto, do fundamentals really matter? Right? There's a big thing going on. Ki yaar, is meme coin the only thing? Is crypto only for casino, gambling? Or is there something fundamental as well? So these are, and on top of that, we want to discuss the crypto cycles. Right, it's very different how the markets are going, where the cycles are. All the theories about cycles have gone haywire. People are kind of lost. Some people are calling this as a market top, and some people are saying there are still 1 or 2 more pumps remaining. So let's discuss all these things in today's podcast, and let's have some fun. We are recording when market is dipping really, really heavily. ठीक है, तो I just read a tweet. एरिक ट्रम्प ने ट्वीट किया है बाय द डिप करके, ठीक है, और किसने मस्त रिट्वीट किया उसको, कैन यू टेल दिस टू योर फादर? कैन यू टेल दिस टू डोनाल्ड ट्रम्प? अरे मैं बोला सही है यार, क्रिप्टो इट बिकम्स रियली रियली फन. बाय द वे, सो चालू करने से पहले इट वुड बी वेरी वेरी नाइस टू गो बैक टू द आवर प्रीवियस पॉडकास्ट. था, मैं याद कर रहा था अपना, जस्ट आप जब बात कर रहे थे तब अपने दोनों का टेक देखने जैसा ऐसा, जैसे आप बहुत बुलिश हो, अरे 350 ये वो सब कुछ. अरे 22 साल खत्म नहीं हुआ है. नहीं खत्म नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ द वे इट वाज बुलिश, नहीं अल्ट कॉइंस के बारे में. एंड मेरा मुंह थोड़ा सूजा हुआ था, ठीक है. टुडे आई एम हैप्पी बिकॉज़ आई लाइक दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, टू बी वेरी फ्रैंक. आई लाइक व्हेन थिंग्स आर फ्रॉथ. मुझे तो बहुत मजा आता है यार, जब भी ये गिरता है ना, बहुत अच्छा सिग्नल, बहुत क्लैरिटी मिलती है. जो लास्ट पॉडकास्ट में जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब आपको मजा आ रहा था, मेरा मुंह थोड़ा सूजा हुआ था. बोले यार ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा. मैं अभी भी मजा कर रहा हूँ, देख अभी मेरा मुंह सूजा हुआ नहीं है. नहीं यार, दैट्स ऑल है. या लेट्स डिस्कस दिस. इन क्रिप्टो एवरीवन मेक्स मनी अदर देन मी. क्या मतलब कहाँ से आया है? व्हाट डू यू हैव अ जनरल टिक? बिकॉज़ it's a common thing ना. I don't think so it needs explanation, but फिर भी ठीक है, because everybody feels that way. If you right now, by the way, it's not the case. It happens in bull runs basically. जो ये लाइन था ना, वो बुल रन में ज्यादा होता है. When everybody is, जो लोग भी पैसा बनाते हैं वो डालते, I mean वो सिग्नलिंग ज्यादा करते हैं. People who don't make money don't signal it. So there are only very 0.001% of the people who make money वो ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और आप उनको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि सब लोग बना रहे, मैं नहीं बना रहा, सबके मीम चल रहे हैं,
कि डेटा जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट्स द डेटा आउट देयर। ये फीलिंग कॉमन है क्रिप्टो में, पर मुझे तो अभी रिवर्स फीलिंग लग रही है। एवरीबडी इन क्रिप्टो राइट नाउ ट्विटर में इज सो बेरिश, लाइक हद बेरिश ऐसा। ओके, सो people are calling this the worst bull market ever. मतलब how can it be a worst bull market ever? ठीक है, if you can, और मुझे समझ में भी आ रहा है, let's say, so the call till now was कि यार if you are out of Bitcoin and Solana or maybe one more coin, ठीक है, तो आपके लिए बुल मार्केट था ही नहीं। Now on top of it, last 2 week में देखा जाए ना, तो even if you were in Solana is almost 50% down from its peak. I mean, I think it went to 290 or something. एंड अभी हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 140 के नीचे है। इवन इन सोलाना यू लॉस्ट 50%। सो इवन इफ यू आर वेरी वेरी लकी, वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसने एक अल्ट कॉइन, सिर्फ एक ही अल्ट कॉइन था जिसके बारे में पूरी दुनिया पूरा साल 1.5 साल से बात कर रही है, वो अल्ट कॉइन लेके भी अभी आज वो बंदा भी रो रहा है। ठीक है, तो देयर वाज ओनली बीटीसी व्हिच इज पम्प। सो अपने आई डोंट नो हमने पॉडकास्ट में बात की है कि नहीं की है, तो वी कैन स्टार्ट देयर विद बीटीसी। आई थिंक मेरा कंसिस्टेंट व्यू रहा है बहुत टाइम से कि बीटीसी इज नॉट क्रिप्टो। बीटीसी को क्रिप्टो से निकाल देना चाहिए, और दैट इज द ओनली थिंग जो ट्रिलियंस में, अगर ऑन चेन भी बीटीसी का कोई ट्रांजैक्शन देखे ना, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 से मैं देख रहा हूँ, यार ये मिलियनर्स बिलियनर्स का गेम हो गया है बीटीसी, एंड इट इज नो मोर ए क्रिप्टो। सेकंड, दैट इज द ओनली कॉइन विच हैज two things, एक तो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, सेकंड दैट्स द ओनली कॉइन विच डजंट हैव ए कंपटीशन, और सबसे अच्छी बात इट कैनॉट हैव ए कंपटीशन। लाइक जैसे कोई दुनिया में बोलेगा नहीं कि मैं अभी गोल्ड बनाने की ट्राई कर रहा हूँ या मैं सिल्वर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट है कोई भी आके एंटरप्रेन्योर बेवकूफ़ी नहीं करेगा, तो वैसे भी कोई आके कभी बोलने नहीं वाला कि मैं नेक्स्ट बीटीसी बना रहा हूँ। दैट इज वेरी स्पेशल अबाउट बीटीसी। इफ यू रिमूव दैट कॉइन, इफ यू रिमूव बीटीसी विच इज 60% ऑफ क्रिप्टो, तो एवरीथिंग इज, I mean, almost ट्रम्प का ले लो या इलेक्शन का ले लो या एवरीथिंग, ऑल द बुल रन they have retraced more or less. Retraced, in fact they've gone below, some of them have gone below the FTX crash levels. Basically सही है। तो if you are, so if we agree कि भाई most people, I mean most retailers don't buy Bitcoin on hold Bitcoin, then everybody is down right now. So and you can feel that emotions in crypto Twitter also. ठीक है, BTC is gone ahead ना। if some a coin which is almost valued at a level of Apple, one of the biggest asset in the world हो जाए कोई coin, आप उसको बाकी एक्सपेरिमेंट से कैसे कर सकते हो? सो बाकी सब चीजें एक्सपेरिमेंट है। एक ही चीज को प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला है, एक ही चीज जो 15 साल से, एक ही चीज में आप डेटा कुछ एनालाइज कर सकते हो, जिसमें वैल्यूज है, जिसमें आप कुछ ना कुछ 10 साल का हिस्ट्री है, एंड ऑल थिंग्स आर गोइंग इन फॉर हिम। सो ये दूसरा क्या है पता है कि आई थिंक बीटीसी लेवल पे बात करें तो बीटीसी एक्चुअल वेल्स इस साइकिल में लोगों को पता चल रहा है। इफ यू सी बीटीसी का अगर डेटा एनालाइज करोगे तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म होल्डर्स बेच रहे हैं। कब से बेच रहे हैं? विच यूज्ड टू बी ए टॉप सिग्नल, दिस टाइम इट्स नॉट, बिकॉज दैट ऑल द सप्लाई हैज बीन gobbled up, and Bitcoin as of today has been in a very boring range. एक बात हुई कि रेंज बहुत छोटी हो गई है। जो पहले एक रेंज थोड़ी बड़ी होती थी, अभी वो रेंज ऑलमोस्ट 94 टाइप्स के बीच में, 98 टाइप्स के बीच में घूम के रह गई है। लाइक वेरी लेस मूवमेंट है बिटकॉइन में। The volatility is coming down. Which is for an asset, which for global asset is a very good thing, and it has got narratives. Okay, so what do you want to do? You want to start with a positive note? कहाँ से चालू करना है आपको? What do you want to hear? It's not what I want to hear. It's about अगर बिटकॉइन का बात ही कर रहे हैं तो बिटकॉइन का you are saying all this thing, volatility कम हो रहा है, which is a positive sign. Another thing where I was reading some days back was Bitcoin is one asset class जो bottom up गया, right? नीचे से ऊपर गया है, and this last year we saw a lot of institutions getting into it, a lot of whales are getting into it, governments are getting into it, but despite that, till date 69% of the Bitcoin is still held by individuals, and institutions or ETF or government that's still trying to grab that pie. So I think there is still a lot of upside remaining for Bitcoin, even though the volatility has gone down. I agree, but I think there's a long way to go. Obviously there is, obviously. But there is this thing about retailers ना कि वो हम लोग को डर रहता है, we are scared of this volatility, ups and downs, and then manipulation and everything.
And despite being proven as such a fantastic asset class, as an asset class of the century or of a lifetime, retailers are selling it and governments and institutions are buying it. So that shift is going to happen, is what I'm saying. So it's going back to those regular asset classes where retailers धीरे 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 कम होते जा रहे हैं और institutions और governments बढ़ते जाएंगे. तो बिटकॉइन के वो रिटेलर्स थे भी नहीं. सो इफ यू कभी भी आप बिटकॉइन के साइकिल को देखोगे ना, सो आई थिंक अराउंड 60% लोग तो कभी कभी वो कंसिस्टेंट ही रहे हैं. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द 5% टूरिस्ट रिटेलर्स की बात कर रहे हो आप, जो डरते हैं. मुझे लगता है जो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म होल्डर है उन्होंने सब देखा हुआ है. दे नो कि व्हाई दे आर बाइंग बिटकॉइन. पीपल हु बॉट बिटकॉइंस, पीपल हु आर बाइंग बिटकॉइंस when there was dip, people who believed and have understood Bitcoin. So they never bought for small things. So again, every price has a seller, that I understand. So yeah, that happens with every asset. And the government and institutions will increase. But जैसे Michael Saylor बोलता है, I don't think so there is space for more than one government to buy a decent chunk of Bitcoin. Like let's call that decent chunk 15% or 20%. There is only space for one nation to do it. Because more and more, तो scarcity जो है ना, जैसे जैसे आप लोगे ना वैसे वैसे people will hold on to it. But then is it good or is it bad? Obviously good, right? Now, okay. No, matlab, if there's only one government, let's say hypothetically we assume US is there is that space, huh? US is that country or government which has a major portion of Bitcoin. Just true today also, huh? Which is true today also, नहीं, but let's say going ahead पूरा बड़ा वो strategic reserve बना देता है and they come up with all those things. Won't other countries be uncomfortable accepting Bitcoin? Think यार एक ही government सब कुछ कर रहा है, monopoly बना रहा है. First of all, financial market has always been concentrated. Ever in the history of finance. जैसे आज की तारीख में भी all the finance आप करोगे तो probably US capital markets are around 50%. I'm talking China, Russia, India सब मिला लो, ठीक है. तो पहले तो ये first thing. Second thing, if you believe in capitalism, in capitalism, then the rule of capitalism is simple. Person who is better, smarter, it will always concentrate, ठीक है. And if they are doing that, because तो वो तो होने ही वाला है और हर किसी में होता है कहीं पे भी. तो आई डोंट थिंक सो यू कैन स्टॉप दैट. दैट्स लाइक पानी का अगर ढलान है कहीं पे तो वहीं जाएगा. नाउ इसमें इट्स ए फेयर अपॉर्चुनिटी. आप जैसे बोल रहे ना, यू कैन नॉट प्रॉमिस आउटकम बट यू कैन गिव फेयर अपॉर्चुनिटी. अभी सब नेशन के पास चांस है. राइट नाउ यूएस इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड दैट मच, राइट. नाउ सपोज समबडी इज नॉट एक्टिंग ऑन दैट, सम नेशन इज नॉट एक्टिंग ऑन दैट, तो डोंट, अगर यूएस ये कर लेता है तो डू यू थिंक इट इज अनफेयर? Now No, I'm not talking of being unfair. I'm saying can it go against Bitcoin अगर concentration बहुत एक ही country में हो गया सब कुछ? और अगर वो country democratic है और वो country capital market भी control करती है तो why not? और concentration तो वैसे भी है, ठीक है. तो concentration रहेगा and that will depend on a seller, right? I don't think so that will matter much. In fact, I think it makes Bitcoin more safer. और वो दिख भी रहा है अपने को कि और हर किसी एसेट में दिख रहा है. जहां जहां यूएस का अगर डोमिनेंस बढ़ रहा है, इफ दैट कंट्री इज एक्सेप्टिंग, आई वुड रादर वांट दैट और वो होगा तो हम रोक भी नहीं सकते. तो उल्टा पॉजिटिवली ये बात बोलूंगा कि यार पहले ये होने दो, ये हो जाए तो सबके बैग्स के लिए अच्छा है, ठीक है. द थिंग आई वुड रादर कॉन्सेंट्रेट हियर इज दिस के व्हाट हैज हैपेंड इन बिटकॉइन की बात को कंटिन्यू करना है. क्रिप्टो हैड नोन वेल्स, वो एक क्रिप्टो वेल्स थे. फिर उसके बाद आया सेलर, उसने दिखा एक्चुअल वेल क्या होता है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर क्या होता है. नाउ आर मोर देन 50 कंपनीज आर पुटिंग बिटकॉइन ऑन बैलेंस शीट. तो अब रियल लेवल के वेल्स आ रहे हैं. और अब मुझे लग रहा है अब सही चीज क्या होने वाली है, मतलब द कैटलिस्ट इन बिटकॉइन व्हिच आई एम वेरी बुलिश ऑन इज यूएस स्टेट्स एंड पेंशन स्कीम्स, ठीक है. I think more than 28, 29, I'm forgetting the number, उतने स्टेट्स ने अप्लाई किया हुआ है टू होल्ड बिटकॉइन. ओके, सो कंबाइन दैट विथ पेंशन स्कीम्स. तो आपको मैं नंबर बताता हूँ, ठीक है, अंदाजे से ये सब लोग मिला के है ना, अंदाजे से ये लोग है ना, इफ यू टोटल दैट अप
इनका the funds they manage, okay, is around 40 trillions. Oh, no, sorry, more than that. 40 to 60 trillions के बीच में. That is half the world economy. How do you measure in terms of market cap के बोल रहे हो? Yes. Market cap. अब सोचो 40 trillions का अगर उन्होंने 1% डाल दिया तो 1% of that, if all of these states put 1%, then you will know that's in hundreds of billions of dollars की बात कर रहे हैं हम. एक 30-40 बिलियन के सेलर को लेके बिटकॉइन में ये हो सकता है, तो hundreds of billions, तो that is the catalyst I am waiting for. Near term catalyst. कि अगर वो आ गया अभी सब बिटकॉइन में, तो क्या होगा बिटकॉइन का? So that's the very positive news कि we have such a big catalyst, but they don't move in the speed of crypto में नहीं चलते वो लोग. For instance, so they will take their own time, and obviously, and if that happens, I think you should have a probability of I don't know, scarcity से क्या बोलते हैं, वर्ड में भूल गया, कि that Bitcoin scarcity का जो phenomena है वो चालू हो सकता है. So that's very positive of Bitcoin. Now the negative of Bitcoin is that it's already such a big asset. Small money will not move. All the parameters which you are checking, retailers doesn't move. Retailers hold करें ना hold करें, it's such a small thing. When if this thing happens, I don't think so कि ये उससे कुछ भी फर्क पड़ेगा. That would be like 1%, क्योंकि हम उनको देखते रहते, क्योंकि शायद सिटी को और हमको आदत है वो बिटकॉइन रिटेलर्स के बारे में. आप तो थोड़ा वो, मुझे नहीं लगता वो 30% हो या 50% कुछ भी फर्क पड़ता है. इट्स लाइक ऑयल मार्केट. ठीक है, छोटा देश क्या लेता है, क्या करते हो, क्या फर्क पड़ता है? ओपेक क्या करता है, उससे फर्क पड़ता है. यूएस क्या करता है, उससे फर्क पड़ता है. बट हम सबकी लाइफ तो ऑयल प्राइसेस से अफेक्टेड रहती है. तो बिटकॉइन में बहुत बड़े कैटलिस्ट बाकी है. एट द सेम टाइम मेरा थीसिस ये है, जो मैं कि वंस कपल ऑफ ये जो एक दो कैटलिस्ट खत्म होने के बाद है ना, बिटकॉइन मेरे हिसाब से विल बिकम सच ए बोरिंग एसेट, बिकॉज वंस इट बिकम्स more than 2-3-4 trillion dollar asset, it almost become impossible to move that. तो बड़े हाथी को मूव करना फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. So my view is कि once we don't know कब ये बुल मार्केट ओवर होगा, कब तक ऊपर जाएगा, कब तक वो रहेगा. I mean, if you take the worst of all the figures, let's say 150K जाता है. I'm not saying it cannot happen, 500K नहीं जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. But even if you take the worst के 150 तक का अब सोच रहे हो कोई at the end of this kind of bull cycle, तो भी बहुत बड़ा एसेट हो जाता है वो. एंड आफ्टर मूविंग दैट it will be good store of value. It will be true to its name कि store of value अच्छा है. But most लोग, जो मुझे लगता है हम लोग जो क्रिप्टो में जो लोग आते हैं ना, रिटेलर्स, they don't come store of value, right? बराबर, हाँ. Yeah. हम पैसा बनाने के लिए आते हैं. पैसा बनाने के लिए आते हैं लोग. तो उसमें वो क्वेश्चन था, मतलब if Bitcoin is such a bullish asset class, Bitcoin दिखा भी रहा है सब कुछ signs of going up, why should we get into altcoins? Altcoins क्यों लेता है? Simple सी बात है, volatility. People want volatility. What does volatility mean? But that is good for trading. But if you are a long-term investor, even Bitcoin, not only long-term, I would say in Bitcoin, volatility से energy, it's how you use it. जो चीज नीचे नहीं जाएगी वो ऊपर भी क्यों जाएगी? What do you mean by volatility? Means ऊपर या down. तो अगर आपको volatility नहीं चाहिए, ठीक है, that means you don't want the upside also. Steady growth upside जो Bitcoin में आने वाला है, according to you. तो फिर why get into altcoins? Obviously you are, if you want that. Do you think people are in for that steady growth? Logically makes sense. Normally we see S&P 500 or let's say India के stock में Nifty 50, they typically double every 4 or 5 years, which I think is faster than, I mean, all other asset classes take more time to double. Bitcoin, we know right now at least will double faster than S&P or Nifty or anything. It should. Yes. It should. Yeah. There's no guarantee, but it should. So if that is the case, we know it's kind of again a wrong word, but short growth. So why go for those 10x, 100x, 50x? If you're happy with that, agreed. I agree with you. If you are happy with it, you never had that opportunity before. I agree with that thought. But do so lalach, तो is it? That's human emotion, psychology, वही है ना फिर? It's not. I don't think. Greed है. Greed. So how do you do and उसी चक्कर में then people manipulate, and then ये सब जो price का चल रहा है, वो Libra coin में क्या हुआ? Manipulation हुआ. At every point, for a bond person, 5% is the guaranteed thing. Most money is in bond. For them, S&P is risky. For people like our parents, share market is risky. They think that is gambling. So what is gambling? It is a perspective. What is your risk appetite?
व्हाट डू यू वांट, ठीक है, दैट पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है. आपको लगता है 4 या 5 साल में डबल करना इज अ डिसेंट थिंग टू डू, ठीक है. आई वुड से रिटेलर्स जो क्रिप्टो में आते हैं, दे डोंट हैव दैट व्यू. 4 या 5 साल में उनको डबल पैसा नहीं चाहिए, ठीक है. They अरे want वो 4-5 साल बिटकॉइन में तो 1-1.5 साल में डबल का एवरेज है, या 1 साल में डबल का एवरेज है. अगेन दैट्स लाइंग. जो 2021 में था वो 60,000 पे है, आज भी डबल नहीं हुआ है, probably is 50% है. आई एम सेइंग डिपेंड्स ऑन टाइमिंग. तो बिटकॉइन वी हैड जो ये लास्ट ईयर, यानी आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 2022, इट वाज एन एनॉमली जहां पे आपको बहुत सारे एक साथ कन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव चीजें हुई थी, एंड यू गॉट दैट प्राइस पॉइंट. जो पहली बार बिटकॉइन कभी 200 वीक एवरेज के नीचे गया था, जो 16-17,000, ठीक है, एंड दैट वाज आवर थीसिस आल्सो, बट दैट वाज अ अनोमली, ठीक है. कैन यू से कि बिटकॉइन 1-1.5 साल में, आर यू ट्राइंग टू से कि डबल होता रहेगा ऐसा? इज दैट योर थियरी? 1-1.5 साल में नहीं तो बट एटलीस्ट फास्टर देन 4 और 5 इयर्स, सो एटलीस्ट 2-3 साल में तो डबल होता रहेगा. Okay, if that is your theory and if you're happy with that, again, I don't think so. My theory is, yes, it will happen. It's a bull run. Again, it will come down. Yeah. Even Michael Saylor doesn't believe that. Yeah. Even he believes that. His bull case is that Bitcoin will do a 29% thing. Even the person who is most bullish, even because it's, how do you double an asset which is 3 trillion? 29% is Decent. 2.5, I would say decent. 2.5 years Yeah, double. 2.5, not 1.5. ठीक है. हाँ, तो मैं That वही is बोल his रहा हूँ, bull case. 2-3 साल So में डबल होएगा. हाँ. he is a super bull. तो मैं bullish person की बात कर रहा हूँ. I'm not talking about an average investor who is taking a sane view. So, and at a cycle of 4 years की बात चल रही है. Minimum investment of 4 years. You see that. So don't be, एक साल में Bitcoin ने जो किया है, and that is what keeps on repeating with people. If you expect what Bitcoin did for last 1.5 years and then you project it, अगर मैं 2021 से बात करूंगा, तो आज भी आप 1.5 साल से बैठे हो, आपको ऑलमोस्ट 5.5 साल होने को आए, डबल तो छोड़ो 1.5 गुना बना, विच इज नॉट बैड. ठीक है. बट आई एम सेइंग इज 2-3 ट्रिलियन का एसेट जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, ये सब यही चीजें है ना इन्वेस्टर्स को मारती है. तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर तुमको एक्सपेक्टेशन 4 साल में डबल का पैसा चाहिए, इफ दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, इफ योर एक्सपेक्टेशन इज बीटिंग S&P 500, आई एग्री विथ यू. यू शुड नॉट लुक बियॉन्ड बिटकॉइन. ठीक है. Not only Bitcoin, you have other options also. You can put Nasdaq also. ठीक है. Risk adjusted शायद Nasdaq maybe outperform Bitcoin also. But is this, then you have to accept that returns. ठीक है. In fact, I am very bullish क्योंकि आप जो अभी आप अगर अपना रिलेट करें ना, क्रिप्टो में लोगों को हफ्ते में चाहिए. हाँ. ठीक है. So that now, तो उस तरह से आप रिस्क लेते हो और रिस्क मटेरियलाइज होता है. ठीक है. Why do we pay? अगर आप यही, दूसरा बात ये है कि what you see, if you look at, अगर ये थॉट में लेने जाऊं, तो फिर तो पूरा nobody will invest in any startup. Do you think investing in startup is necessary? Yes, it is. Why? Two things. One, the ecosystem needs that kind of money to grow. Then, second, if we get that, if we are good enough and we are able to identify that startup, तो वो अल्फा अपने को बड़ा मिलता है. Exactly. Right? So those kind of people who are putting money into startups, they are asking for, when whatever they go, they are asking for at least in their 10, 20, 50 access. That's their expectation. ठीक है. They also know कि 9 out of 10 घुस जाएंगे, नहीं startups नहीं चलेंगे. But at least they should be able to outperform the S&P 500. बराबर. ठीक है. So is that greed then? I mean, you know what I'm saying. मतलब तो सब घुमा फिरा के मेरे को वो क्वेश्चन जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं उसके ऊपर पूछ रहा है. I mean, यहाँ पर ग्रीड का बात मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे you rightly said, लोगों को एक हफ्ते में चाहिए. जो तू स्टार्टअप इकोसिस्टम का बात कर रहा है, they wait 10-12 years, they get into that. हाँ, what I'm trying to say is it's a perspective. It's a risk reward you accept. If you are accepting a risk reward, if you accept that risk reward, then nobody can tell you, because a bond market will tell you you are doing बेवकूफी कर रहे हो, S&P में डाल रहे हो. ठीक है. नैस्डैक वाला S&P को ये बोलता है, बिटकॉइन वाला इसको बोलता है, वो अल्टकॉइन को बोलता है. आज बिटकॉइन चल गया, अभी तक बिटकॉइन लोग स्लो समझ रहे थे, स्लो रेस था. ठीक है. 1 महीने का अपना ही पॉडकास्ट निकाल के देख लो. सोलाना मिस किया, सोलाना चल रहा था. आज सडनली बिटकॉइन कर रहे हो. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इज व्हाट यू वांट टू हैव.
have that vision and be honest with yourself. Care, and then stick to that honesty. You cannot be okay. I tell you what, there are 3-4 problems with crypto. Okay, one of the biggest problem is crypto is a venture. Crypto is a venture asset. It's an experimental asset. It's a startup like asset. Apart from Bitcoin की बात कर रहा हूँ. Okay, but prices फिर भी रोज मिलते हैं. जैसे Can you explain? Okay, जैसे शार्क टैंक में आप देखते हो कंपनीज इंडिया में, कैन यू आपको क्या वैल्यूएशन, उनकी वैल्यू रोज चेंज होती है क्या? जिस इन्वेस्टमेंट नहीं होती, राइट? पर यहाँ पे रोज चेंज होती है. हफ्ते पहले 16,200 था, आज Because they are liquid. they are liquid. That's what I'm saying. A venture asset which is liquid. Now, if you change that fundamental thing, जो कहीं नहीं होता है, स्टार्टअप का भाव, आप रोज किसी स्टार्टअप को क्यों नहीं अलाउ करते हम रोज उसका भाव चेंज करने में? ठीक है. इनफैक्ट उल्टा ज्यादा सच होता है. Many big companies don't want to go public. Stripe, Starlink, ठीक है, SpaceX, they are already huge giants. They are not preferring to go public because you are changing, many dynamics change when a venture asset becomes a liquid asset. Because you start to then compare yourself with S&P. बहुत सारी ये जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम करने लगते हैं. किसके साथ कंपेयरिंग चालू कर देते हैं, महीने का महीने उनको रीरेट करते रहते हैं. ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ नहीं है उससे पहले उसको हम वैल्यूएशन करने में डालना चाहते हैं. ठीक है, नैरेटिव के साथ चलते हैं. प्रोडक्ट मार्केट फिट की जगह पे हम नैरेटिव मार्केट फिट ढूंढते रहते हैं. एक स्कैम लिब्रा करते हैं, हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं. ट्रम्प कॉइन आता है तो हम कुछ और, ट्रम्प कॉइन आया तो सब कुछ बुलिश हो जाता है. सेम चीज मिला है तो वही हो जाता है बेसिकली. So this is one of the fundamental problem with crypto. What is other problem? कि crypto में incentives are not aligned right now. Incentives of different markets are not aligned, and there is no one to protect anybody. It's a free thing. ठीक है, ये दोनों चीजें समझा नहीं. Incentives are not aligned and it's a free thing. Okay. So free thing is simple. It's a permissionless market. ठीक है, so there are no rules and regulations. We don't want that. Okay. So there is a cost of freedom. If you want a freedom to launch anything, there will be a Libra coin. If you want to avoid a Libra coin, you need some regulation or self-regulation. Correct? Self-regulation will always be lagging thing. ठीक है, you can learn from the mistake and then you self-regulate. Again, there will be something else and then you learn from it and then you self-regulate. Okay, let me give you basic examples. अभी तक क्या सीन चल रहा था? VC bad पूरा और VC bad चला पूरा एक साल. फिर क्या हुआ? अरे we started pump fund, full FDV. ठीक है, full FDV. अरे भाई no VCs. We thought it's a mechanism. कोई VC है ही नहीं भाई, पूरा FDV है. Right now क्या चल रहा है एक हफ्ते से? उसमें भी लोगों ने ढूंढ लिया FDV पूरा है, सब कुछ है, पर इनसाइडर है. स्नाइपर्स आ जाते हैं, लोग ले उससे पहले दूसरे लोग लेके डंप कर देते हैं. नाउ अभी क्या शुड यू गो बैक? VC गुड करना चाहिए हमको, क्या करना चाहिए? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम यू हैव टू पे. नाउ व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग? ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसका करेक्शन प्रोबेबली क्या है? सो यू प्रॉब्लम ये है कि कोई इंसेंटिव्स अलाइनमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए अपने को. जैसे फॉर एग्जांपल VC बैड जब हुआ ना, तो बिकॉज व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इंसेंटिव्स का हाथ क्या थे उन पे? व्हाट वाज द इंसेंटिव प्रॉब्लम देयर? दैट इन ए क्रिप्टो VCs were getting, this was the incentive problem. ट्रेडिशनल में क्या है कि VCs get to invest money. माइनस पॉइंट क्या होता है पता है? They are locked for 7 years, 8 years. That's the price they pay. That was the checks and balance of the investing. You'll get to the startup. Crypto में क्या है? A VC has the opportunity to invest in a startup and sometimes in a month उसको liquid मिल जाता है वो. तो आपको एक लो वैल्यूएशन में करने मिल रहा है, एकदम अनअलाइंड इंसेंटिव हो गया था. अब उसका रिवर्स क्या हुआ? There were good projects which said we will not have VC. जैसे एग्जांपल Hype can be that example. ठीक है, Hype, Jupiter, that example. तो we started that was one coin. ये सेल्फ करेक्शन यहाँ से आया. Market said this. Same thing is happening right now. Meme coins पहले लोग थक गए थे. Then people started finding, even people started creating funds based on that. People started having theories on that.
cat-based meme coin, AI-based meme coin, dog-based meme coin. What is increasing what? So we started forming categories inside meme coin. Then with Trump, we got political meme coins. Thankfully, it was short-lived. I don't know. Abhi bhi ho sakta hai. What I'm trying to say is that crypto is trying to find how to align incentives. Pendulums keep swinging and then it finds that balance. जब VC का alignment ज़्यादा हो गया, तो हमने pendulum swing कर दिया meme coin की तरफ. Now, that was one reason. What was the other reason? Other reason was simple. The last administration, US administration, if they don't allow good projects to launch a token, भी अच्छे projects उनको token करने मिल नहीं रहा था. If you don't allow good people to grow, what will grow? Bad people. The scams. Scams. And that's what we saw. So now things are starting to get reverse or will get reverse. We can see early stage deals are coming in. OpenSea is trying to do already. ये 2-3 week में हमने decent से chain launch किए होते हुए देखा. I think Monad, Mega will launch in next 1 month. These are all. OpenSea will start doing this. So what I'm trying to say is, first, this is the cost of freedom. This is wild, wild west. Democracy is any new radical ideas, permissionless ideas. ये जो बोलने के वर्ड होते हैं उनके हम कॉस्ट सामने पे करना नहीं चाहते थे अभी तक. ये सब एटीट्यूड, ये सबको चाहिए सही. तो अगर आपको परमिशनलेस चाहिए, if you want those big access, then you have to accept a responsibility also. अगर आप क्रिप्टो चाहते हो तो सीट फेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. Nobody wants that. Nobody wants that. I want my bank to keep my money safe. अगर आपको बैंक चाहिए, if you want those middlemen, तो फिर आपको मिडलमैन मिलेगा. समझ रहे हो? तो वो इंसेंटिव अलाइनमेंट अलग अलग लेवल पे. ये मैंने एक एग्जांपल लिया, वीसी का एग्जांपल लेके, ये हर एक लेवल पे है. एंड इवन बिटकॉइन को आज 15 साल लगे वो इंसेंटिव अलाइनमेंट करने में. नाउ एंड दैट वाज अ स्नीकी वे व्हिच बिटकॉइन ग्रू. फॉर एग्जांपल, जो मुझे बिटकॉइन की जो वन ऑफ द अच्छी स्टोरी लगती है, बिटकॉइन हैज मेनी स्टोरीज, राइट? जैसे जब विकीलीक्स वाज ट्राइंग टू यूज बिटकॉइन, सतोशी टोल्ड विकीलीक्स फाउंडर, प्लीज डोंट यूज माय बिटकॉइन. व्हाई? एक बंदा जिसका खुद का प्रोजेक्ट है, उसको पता है विकीलीक्स यूज करेगा, उसको आईबॉल्स मिलेगा, काइंड ऑफ यूज केस मिलेगा, जब बिटकॉइन का कोई यूज केस भी नहीं था ढंग से. नाउ व्हाई वुड ए फाउंडर डू दैट? और जब सबसे बड़ा बैग उसके पास है, एंड यू नो द आंसर, राइट? ही न्यू कि दैट वाज नॉट द टाइम. ही वाज थिंकिंग इस आइडिया को नीड्स मोर टाइम. इट डिडंट वांट टू बर्न एंड क्रैश. ही न्यू दैट कि अगर आज विकीलीक्स यूज करने लगा तो इट विल बर्न एंड क्रैश. तो देन ही वेटेड फॉर दैट आइडिया टू ग्रो, to get decentralized enough. That's what I'm trying to say. So incentives align karna, and if you like this wild west, which people like me, I think it's a really good thing. You are getting this opportunity for the first time. You are getting to participate in this kind of a global level permissionless experiment, venture investing. Okay, ये नहीं तो क्या आपको, अगर आपको S&P का और NASDAQ का और ये अगर जो 4 साल में डबल का मौका चाहिए, तो वो तो पहले भी था ना, वो तो अभी भी है ना. Then don't come to crypto. Why should you come? You should come to why if you don't like jungle, if you like city, if you want that jungle, आपको वो जंगल की नेचुरलनेस चाहिए, वो कामनेस चाहिए, वो चाहिए. अगर आपको जहाँ कुछ नया बनने का पॉसिबिलिटी है, जहाँ एक वेलनेस सेंटर भी बन सकता है, नया ऐसा कुछ भी बन सकता है जो हमने सोचा नहीं है, तो फिर उसमें वो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं जंगल के, कभी कभी शेयर भी आ जाएगा, कभी कभी यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रूल, जंगल रूल. तो जंगल रूल चल रहा है, you have to be smart enough, you have to take your own responsibility. So then how do you navigate that question? Let's say I've decided to enter the jungle. Okay. And then this is different. First, you should not complain. There will be Libras of the world. There will be meme coins of the world. It will never stop. It will keep coming. Yeah, that you've explained. That's the cost of freedom. Yeah. Now the next question is, ये जंगल में आ गया, मैं पहले तो सिटी में था, सिटी में रहने के मुझे रूल्स पता थे या मैं सीख रहा था. अब जंगल में suddenly we realize a lot of people come with the same set of rules and try to apply it in the jungle का rules, right? Which I'm trying to say कि अगर ये analogy हटा दो तो altcoins में same kind of fundamentals, do they really matter? If you want to now study the altcoin market, okay, if you want to navigate this space, obviously it matters, yeah. Fundamentals matters everywhere. Because there's this one example which I was reading, and I will quote that example, that in the year 2024, which is last year, DeFi, when I say DeFi, मतलब the overall DeFi के all protocols, उनका revenues in terms of the DEX का revenues, the liquid staking का revenues, lending, borrowing, trading, वो सारे revenues had grown 218%, and the overall DeFi का market cap in terms of valuation grew only 69%. अगर आप ये same logic अगर आप let's say
जो सिटी वाले या फिर नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट्स में लाओ कि तुम्हारे कंपनी का रेवेन्यू 218% ग्रो किया है, बट तुम्हारा कंपनी सिर्फ 69% ग्रो किया इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, राइट? सो देन द क्वेश्चन इज, वो दिमाग में, आई मीन मेरे दिमाग में फिर आया था यार, इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हुए, बिकॉज डीफाई और लेट्स से फाइनेंस इज वन गुड यूज केस crypto has found beyond Bitcoin, right? Which, and I'm including all stable coins and everything in finance, एक single umbrella में. और on the other hand, जो आप बोल रहे हो मीम coins 1000x हो रहे 2 महीने में, 3 महीने में, कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ फ्रीडम भर रहे, ठीक है. सो हाउ डू यू नेविगेट दिस स्पेस फंडामेंटली? तो लास्ट एग्जांपल से चालू करता हूँ पहले. तो मीम कॉइन्स जो हुए वो क्रैश भी हो गए अभी तो, बराबर. दैट यू नो द, सो उसका आपको मिल गया, राइट आंसर. मीम कॉइन्स जब 10x हुए थे वो 100x और व्हाटएवर 90% गिर भी गए. नाउ कमिंग टू फंडामेंटल, देयर इज अ बिगर क्वेश्चन. द बिगर क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज दैट फंडामेंटल्स? जो आपने जो अभी एग्जांपल्स लिए ना कि यार रेवेन्यू इतना हुआ तो प्राइस अर्निंग रेशियो या प्राइस क्यों नहीं बढ़ा, ये कहाँ से आया? ये किसने बताया आपको ऐसा होना चाहिए? ये ट्रेडिशनल वर्ल्ड का. यस. नाउ यही सिटी का वही प्रॉब्लम है कि सिटी का जब आप लाते हो ना, सिटी का रूल्स लाते हो कि जंगल में ये क्यों नहीं चल रहा. well, let me give you the straight answer now. Straight answer is this: we are still struggling. What is fundamental in this? What is revenue? What is a revenue? What is actually, how do you value a blockchain? Because ये पहली बार हो रहा है कि एक चीज जो कमोडिटी की तरह काम भी करती है, जो गैस यूज भी होती है, एक कोई टेस्ला या एप्पल का शेयर यूज नहीं होता है कहीं पे, वो घिसता नहीं है. यहाँ ईथर सोलाना घिसता भी है, वो रेल्स भी है, डिसेंट्रलाइज भी है, एट द सेम टाइम फिक्स कैप भी है. तो आप फंडामेंटली क्या क्या डिफरेंट है ट्रेडिशनल मार्केट में? एप्पल का शेयर, रिलायंस का शेयर फिक्स नहीं है, टोटल वैल्यू डन फिक्स. उनका फिक्स शेड्यूल नहीं है जिसमें यहाँ पे रहता है. वो कोई गैस की तरह, एज ए कमोडिटी की तरह या एज ए गैस की तरह यूज नहीं होता है. कैसे आप इनको, तो यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस फंडामेंटल्स, एंड दैट इज वेयर मोस्ट पीपल डू द मिस्टेक्स. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऑफ द ईयर हमने बात भी की हुई है, क्या स्टेकिंग, क्या कैसे गिना जाए उसको इन्फ्लेशन इशुएंस. बेसिकली स्टेकिंग क्या है? इशुएंस है, डिफरेंट वे. आप स्टेक करते हो टोकन, आप उसके बदले में जैसे 16 आपको 7% मिलता है. व्हाट इज दैट? डज दैट ऐड टू ए इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए ब्लॉकचेन, और इज इट ए कॉस्ट? ये माइनस पॉइंट है कि प्लस पॉइंट है? बर्न करोगे तो अपने को, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना इजी आंसर ढूंढते हैं. लेट मी टेल यू द इजी आंसर. इजी आंसर क्या है? जैसे लोग, कैसे मैं बात कर रहा हूँ डिसेंट पीपल जो क्रिप्टो थोड़ा समझते हैं, वो प्रॉफिट को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बर्न जैसे इथेरियम में होता है, बर्न माइनस इशुएंस. इथेरियम इतना बर्न हुआ, बट लेट्स से 3% इथेरियम बर्न हुआ, 2% इश्यू हुआ, 1% बचा हुआ प्रॉफिट. दैट्स एन लेजी आंसर, बिकॉज ये सब नहीं है. क्या एक ब्लॉकचेन को बर्न और इशुएंस ही करना चाहिए? व्हाट इज एमईवी देन? एमईवी जो टिप्स होता है, जैसे सोलाना में पहले, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बहुत बड़ी ये अपना, आई मीन व्हेन आई वाज स्टडीइंग सोलाना, दिस वाज वन ऑफ द कोर थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड. बिकॉज उस टाइम पे लेजी नैरेटिव क्या था पता है? सोलाना का यार इतना 0.00% फी है ना, तो कैसे? बिकॉज पीपल थिंक फीस आर प्रॉफिट. फीस आर द प्रॉफिट, बट आर दे? क्वेश्चन इज, इथेरियम जो फीस अर्न करता है, ठीक है, वैलिडेटर जो फीस अर्न करते हैं एक आपको ब्लॉक बनाने की, आर दे प्रॉफिट और ए कॉस्ट? ऑब्वियसली फर्स्ट थॉट क्या बोलेगा आपको कि यार प्रॉफिट है ना मेरे लिए, तो मैं कमा रहा हूँ, एक ब्लॉकचेन कमा रहा है. हाँ, तो तेरा एफर्ट डाल रहा है, तेरा अभी प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक हो रहा है, तेरे को तेरा मेहनत का पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आपको वो फीस जो भर रहा है उसके लिए कॉस्ट है. नहीं, अल्टीमेटली लेट्स नॉट कंफ्यूज. एक कंपनी के लिए आप एक जो उसका प्रॉफिट होता है वो हमारे लिए हमेशा कॉस्ट ही रहेगा, तो हम कंपनी को वैल्यू करते हैं. एज ए इन्वेस्टर यू वैल्यू, राइट? कोका कोला कितना कमा रहा है, उसका मार्जिन कितना है. एप्पल 30% लेता है तो उसका टेक रेट 30% है. कंज्यूमर के तो लो कॉस्ट है, पर अगर इन्वेस्टर, आप नाउ वी आर लुकिंग एट ए इन्वेस्टर फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एज ए इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू वांट एप्पल टू हैव ए मोर टेक रेट और लेस टेक रेट? टेक रेट समझ रहे हो ना? अमेजोन, जैसे अमेजोन है, डू यू वांट टेक रेट मोर या लेस? यू वांट मोर. इज दैट गुड फॉर कंज्यूमर? मे नॉट नेसेसरली, और इनफैक्ट आई एग्री बैड. का मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट है. बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर इन अमेजोन और इन्वेस्टर इन एप्पल, you want them to extract more. So let's look at from that angle. We are looking at investor angle.
Now, as an investor angle, somebody who wants to invest in Ethereum, or somebody who wants to invest in Solana, for them, what is fees? अगर वो fees ज़्यादा है तो should that fees, अगर Ethereum महंगा है, is that then good? जैसे जब 2021, 2022 में सोलाना में स्टडी कर रहा था, तो सोलाना का फीस तो कम होते जा रहा है, और दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल वांट. तो फिर सोलाना कमाएगा कैसे? अगर फीस ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो. अभी आप कोई भी ब्लॉकचेन में देखोगे तो कॉमन वर्ड है गैसलेस ट्रांजैक्शन. दैट मींस ऑलमोस्ट जीरो फीस. तो फिर तो बैड गिनोगे आप उसको एज ए इन्वेस्टर. वॉल्यूम गेम है ना. नहीं, बट जब है ही नहीं, जीरो है, कितना भी वॉल्यूम कर लो, other modes of revenues come up. Exactly. Now, other modes of revenue come up. So that's where you need to have fundamental. जो शायद traditional world में, जैसे for example, one of the biggest thing in crypto is MEV. ऐसा कुछ है ही नहीं. ऐसा कुछ कहीं traditional market में वैसा revenue नहीं है, right? So what I'm trying to say is कि यार you have to analyze क्या revenues है. Second, TAM भी fix नहीं है. जैसे हमको मालूम है कि total addressable market for as an investor, you don't have your company in US might have Facebook has access to India or global markets. Many times your country may not have that access. वो ऊपर से ये Trump tariff वेरिफ ला रहा है, तो access is also different. अब जहाँ पे टैरिफ चलेगा, let's assume अभी टैरिफ की बातें बहुत चल रही है, तो आपका इसका मतलब है access to markets will be at a price. क्रिप्टो में वो परमिशनलेस है. So how do you add this to evaluation? जिसमें आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते. इसका मतलब क्रिप्टो में आपको पूरा मार्केट मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट मिल रहा है. नोबडी कंट्रोल, इससे डिसेंट्रलाइज, तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो आपको परफेक्ट मार्केट मिल रहा है, राइट? ऑब्वियसली योर टाइम इज बिगर बिकॉज नो बैरियर्स है. So that is a good feature of a project. So then how do you fundament? So I get the point that पूरे parameters अलग ही है. Exactly. You should not get the same thing. You have to keep that aside. Yes, you have to keep that aside, and you have to. You can use them. You can use them. Use them to learn something new. But you have to be open to learning new, and you can't just be rigid on that fact कि ये ऐसा ही चलता आया है, ऐसा ही चलेगा. Exactly. And we have seen that the best of the best in the traditional world who come with the same thought process mindset in the crypto space have struggled, and the best of the best have gone down as well. That is understood. Then the question is, then how do you navigate the space fundamentally? That's where the charm comes, na? How do you value fundamentally? जैसे मेरा तरीका fundamentally देखने का, बिटकॉइन के तरीके 10 तरीके हैं. कोई उसको scarcity asset तरीके देखता है, कोई उसको commodity देखता है. वो commodity के साथ कोई इसको oil के साथ कंपेयर करेगा बिटकॉइन को. आपका क्या नजरिया है, वो कितना डेप्थ है, और जो इन्वेस्टिंग में हमेशा रहा है. At every investor, somebody thinks today Apple is a good buyer, or a very big smart person thinks a good buyer. Somebody thinks it's a bad buy. Somebody thinks Bitcoin का 90,000 is a very bad cost. Even long-term holders बेच रहे हैं. Person who has holding Bitcoin for years now, who probably understands Bitcoin more than anybody who is buying today, who has entered today, he is selling now. So do you think if he is selling, that is question number one. Then you also have to understand your own situation also different. He might have 10,000 bitcoins, so it makes sense for him to diversify. 1,000 bitcoins उसके लिए सही है. समझ रहे हो? तो all you have to combine. There is no one answer. ऐसा होता तो क्रिप्टो तो फिर तो सबको एक ही एसेट में होता. नहीं सही है. I think we should have a separate podcast on understanding how do you navigate this. How do you, as in how does Jagdish navigate this space? How does he study? How do you get in depth of things? We'll discuss Bitcoin. We'll discuss. I think one whole podcast is also less for that, but I think. So for example, today मैं आज के बारे में बता सकता हूँ. So I can tell you a very good paper. If you where should you start with? So one of the I'm forgetting the name. I mean I'll mess up the name. So I still try to pronounce something. It's called the person is called John. I don't want to spell it's a very difficult surname. Basically, he has written a very good paper, which I thought one of the best thing I've read, how to value blockchains. So let me give you the answer. There are the best parameter today I find is something called real economic value, REV. Okay. Okay. So if you go to many of the tools in crypto or search crypto Twitter today, right now, REV of blockchains, आप अगर डाल के देखोगे, अभी भी डालोगे, then you will find that's a good start. It's not a perfect metrics, but it's a good start. I think it hits 90% of how I would value a blockchain. Those are the things you can start with. दूसरा ये है कि if you are looking at venture now,
इन ए वेंचर लाइक इन्वेस्टमेंट यू आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर. तो फंडामेंटल्स, आप वैल्यू देख रहे हो और ग्रोथ देख रहे हो. अगर वैल्यू इन्वेस्टर हो या ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई एक फाउंडर आता है सिर्फ एक पीपीटी लेके, तो क्या फंडामेंटल होगा उसका? उसके पास एक पीपीटी है सिर्फ और एक आइडिया है. बोलो, आप बताओ तो क्या you evaluate स्टडी द फाउंडर, क्या फंडामेंटल भाई उसके? उसका बैकग्राउंड देखो, उसने Exactly. पास्ट में क्या किया है, क्या उखाड़ा है, क्या नहीं That किया is है. one. There's- Also learn his failures apart from his successes. How do you value that? क्या पैरामीटर, क्या मैट्रिक यूज Then करें? based on experience and your past things, Metric you क्या come है? up you come up with your own set of parameters and metrics and valuation. है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो है फाउंडर का कुछ भी? नहीं, वो तो VC stage का. एक्सपीरियंस रेशियो कुछ है? एक्सपीरियंस और डिग्री रेशियो. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज वेयर यू स्टार्ट विद, दैट्स कॉल्ड वेंचर. अब यहाँ मैं जानबूझ के उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रहा हूँ कि दिस थिंग स्टार्ट्स विद दैट थिंग. वी हैव टू लर्न. क्रिप्टो गिव्स यू चांस टू लर्न दैट. नाउ ये हमारे क्या बोलते डीएनए में नहीं है. एज ए रिटेलर्स, एज ए रिटेलर वी हैव बीन प्रोटेक्टेड फॉर गुड और बैड. आई डोंट नो, आई हैव वेरी एक्सट्रीम व्यूज कि हमको ट्रेडिशनल मार्केट में बोला जाता है, ऑलमोस्ट हर डेवलप मार्केट में, इंडिया और चाहे हो, कि भाई तुम रिटेलर्स को तुम आईपीओ नहीं कर सकते. स्टार्टअप जो शार्क टैंक में जो डील्स आती है ना, वो आपको मेरे को नहीं मिलती है. क्यों नहीं मिलती है? वो 10-20 लाख तो हम भी डाल सकते हैं. वो हमको सिखाया ही नहीं जाता है. उसके सवाल क्या पूछना चाहिए, क्या देखना चाहिए. अब वो गुड है बैड है, क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आपने कभी सिखाया नहीं किसी को, तो उनको वैल्यू करना भी नहीं आता. मैं ये आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ कि अगर परमिशन लेस जंगल में जहाँ परमिशन लेस है, तो लेट देम इन. आई एम काइंड ऑफ इन दिस सिनेरियो आई एम ए लिबर्टेरियन. ठीक है, मेरा वैल्यू सिस्टम ये बोलता है कि तुम करने दो ना, गलतियां होंगी. प्रोबेबली पीपल विल टेक दैट वन साइकिल, बट एक फंडामेंटल चीज सीखेंगे. स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो करेगा, कैसे ग्रो किया जाता है. ऑल दिस नैरेटिव बुल मार्केट बूम बस्ट जो क्रिप्टो में हो रहा है, एवरी साइकिल, it has taught me. I have learned 100 times more in this cycle than when I started in the first 2 years. Literally 100 times. Because these things teaches you. You question ना, क्या यार कैसे करूँ इसको वैल्यू में, कौन सा पैरामीटर पकड़ूं, और पैरामीटर पकड़ूं तो वो पैरामीटर को कितना प्रायोरिटी दूं और कितना वेटेज दूं. जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड, बहुत सारे जो लास्ट 6 months में हुआ, व्हाट इज द वन थिंग, वन पैरामीटर विच मैटर्ड द मोस्ट लास्ट 6 months में, या लास्ट 1 साल में ले लो. मेरे हिसाब से इफ आई डिस्टिल डाउन ना, द वन थिंग, द पैरामीटर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था वो था अटेंशन. इवन बिटकॉइन में भी, कि वी चेंज अवर स्टैंड ऑन बिटकॉइन लास्ट 2 years. व्हाट वाज द वन थिंग, इफ आई पिक ओनली वन थिंग, दैट वाज द अटेंशन. क्या बिटकॉइन इज गेटिंग ए अटेंशन फ्रॉम पीपल which it never got. On those people are powerful people or powerful governments. What is meme coin? Attention. What is narrative? Attention. What do you do? Learn how to value attention. Learn how to measure attention. Because attention is, it's not that Instagram में होता है ना, और everybody wants attention, right? Now, कैसे वैल्यू किया जाए या कैसे सोचा जाए उसके बारे में, आपको एग्जैक्ट रेशियो नहीं मिलेगा. तो थिंग ये था कि यार अटेंशन अगर इसको मिल रहा है, क्रिप्टो में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो आई वुड अभी अगर आप जैसे बोल रहे हैं हमको करना चाहिए फंडामेंटल, तो बट आई वुड सजेस्ट यार ये एक पैरामीटर को स्टडी किया जा सकता है. क्या इनका क्या पैरामीटर्स ढूंढूं, उसके बारे में कैसे सोचूं, उसको मेजर कैसे करूं. सही आंसर कभी होता ही नहीं है. दैट इज अप्रोच आई टेक. I've learned a lot from you on all these things, and I still struggle to find the right answer, No, because there is no right answer. There is no right answer. So, which is why I wanted a separate podcast where I want to dig into your brain and your thought process. Yeah, you can, and you should dig into all. This is what everybody does. जैसे आपको करना है, मैं भी वही करता हूँ. Every time I found somebody writing a paper, I try to see, and then मैं अपना थिंकिंग मेजर करता हूँ, उसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ फंडामेंटल प्रोसेस को, या जिसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग बोलता हूँ. क्या फर्स्ट उसको छोटे से छोटे पैरामीटर में कहाँ से लाऊं, और फिर उसको कहाँ वो डॉट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा. Let's discuss the markets. Okay, let me ask you a straight question. Has the market topped already, or you think there are one or two more pumps? Obviously not, यार. I don't. पहले तो ये pumps, I like this. By the time अभी तक हमको स्मार्ट बनना चाहिए कि there is not one market. There is a Bitcoin market, there is a L1 market, there is a gambling market. ये 3-4 मार्केट तो हैं ही. There is a altcoin market, there is a Bitcoin market, और there is a gambling market. और भी डायरेक्शनली सब लोग एक ही जगह पे जाते हैं ना. I don't think so. Has that happened? हाँ, directionally, Bitcoin is down. Bitcoin is down from where? अरे मैं वही बोल रहा हूँ, directionally it is down. The
the impact will be matlab, let's say Bitcoin is down only 8%, 10%, 15%. All coins are down 80%, 90%, but both directionally are down. I am asking a question is just, yes, we separate all the parameters. I think I disagree here. Directionally down from what? If you are saying last 1 week, 1 month, I agree. Yes, last 3 weeks. Last 6 months में उल्टा है ना. Bitcoin is up, probably double. तो डायरेक्शनली मैं तो ये बोलूंगा, मैं तो मेरा अगर विजन 6 months का है तो मैं बोलूंगा डायरेक्शनली बिटकॉइन 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हुआ है. और इलेक्शन से पहले शायद 50,000 चलता था. आई माइट बी रॉन्ग हियर एंड देन, डोंट कोट मी ऑन नंबर्स. 50,000 था. 50,000 था, तो आज वो 100 के करीब है. तो मेरे हिसाब से डायरेक्शनली बिटकॉइन डबल हुआ है, बाकी चीजें आधा हो गई है. तो कैसे हुआ डायरेक्शनली से? राइट. तो मैं वही बोल रहा हूँ. I am thinking लास्ट 2-3 वीक का मैं सोच रहा हूँ. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन. तो वही बोल रहा हूँ कि अगेन दिस इज व्हाट टाइम फ्रेम की बात आ गई. अभी डायरेक्शन की बात नहीं है, ये टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो आप. तो दैट इज तो सॉरी मैं आपको काट दिया बीच में. तो यू आर सेइंग समथिंग. Markets, yeah. Where do you think we are in the cycle? So if 10 is the ultimate top and 1 is the bottom, so कहाँ पर है हम? Okay. तेरे हिसाब से. हाँ, सबके बात है भाई. बिटकॉइन के लिए बता, अलग-अलग मार्केट बता रहा हूँ. के लिए बता. मेरे हिसाब से बिटकॉइन इज एट 7. अल्टकॉइंस अगेन नाउ. अल्टकॉइन मेरे जो में अलग-अलग अल्टकॉइंस है, पर अगर यू आर फोर्सिंग मी टू डू इट सो आई विल टेल यू. तो अल्टकॉइन, अगर सिर्फ अल्टकॉइंस को, ठीक है, अल्टकॉइंस आई थिंक आर अराउंड 3 or 4. So it's a good time in my view. Gambling market is already shit. So that I would say is a narrative. कुछ नया ढूंढेंगे. नया people will start to find new way. We want a new casino in the market. 2021 में ये NFT था. उसके बाद यही अलग-अलग टाइप के मीम कॉइन्स, अलग-अलग कसिनो ढूंढते रहते हैं. तो अभी हमको एक नया कसिनो चाहिए. AI आया बीच में. Yeah. But so let's break it down. Altcoins generally करने से अच्छा, let's break it down. Meme coins, you think the top has come in, or meme coins are meme coin dead? I think meme coins are not dead. There will be always, but I think yes, people are fed up now. People have known the truth now. अभी जो meme coin पे जाएगा, he will be very clear that I am going to go to casino. You go to casino more or less knowing that you lose money, more or less to do that, more or less to have that fun. Ideally, you should do it with 1%, 2% of your money. I'm not saying not have fun. So then you're saying meme coin top में 8-9 हो चुका है. In that and sense, it's on the way down. That I would agree. बहुत हो चुका. Unless you find something new, और जो मुझे अभी होते हुए दिख नहीं रहा. जैसे AI में AI meme coins थे narrative, but I think वो भी अभी almost. Let's discuss that part. Second, so I mean 2 months back we were discussing के AI and crypto का marriage has found a fantastic use case, and ये वो, and a lot of December month में especially AI crypto tokens pumped, and people are गंगो के ये साल पूरा this is the new narrative, this will drive everything in this cycle, and suddenly we are seeing all of them going 80-90% down in the last 2 months. Don't think so they have gone down. I think meme coins have gone down. जैसे Kaito है. आज Kaito is, as of today, when everything is tanking, even Bitcoin. Probably, again, मैंने 2-3 घंटे पहले देखा हुआ था रिकॉर्डिंग से. It was slightly up. What is Kaito? It's just an AI based app. AI, I am very bullish on. Depends on product. अगर आप उसी AI का meme coin बनाओगे तो yes, I'm down. AI is a tool. AI is a power. AI is an energy. AI एक टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको आप यूज केस दोगे. आई एम नॉट पिकिंग. what I'm trying to say to you is this, कि अच्छे प्रोजेक्ट्स आर नॉट डाउन. अच्छे प्रोजेक्ट्स आर स्टिल होल्डिंग. थिंग्स विच वर वेपरवेयर, सिर्फ मी टू था और कुछ नहीं ऐड कर रहा था. कुछ भी नहीं, लिटरली नॉट इवन अ सिंगल. जैसे राइट नाउ आई वुड वांट टू गो टू Kaito and look at what is happening, where the narrative is. तो मेरे लिए आज की तारीख में भी वो इम्पोर्टेंट ऐप है. उसका एयर ड्रॉप मोर और लेस अच्छा था. कॉन्ट्रीब्यूटर्स को दिया उन्होंने, किसी भी को नहीं पकड़ाया. तो मैं वो बोल रहा हूँ. ऑब्वियसली AI, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन. AI इज द थिंग जो हम, वी आर नॉट इवन स्टार्टेड, वी आर जस्ट फिगरिंग आउट. हमने तो स्क्रैच भी नहीं किया उसमें. आई थिंक AI विल इम्प्रूव ब्लॉकचेन लाइक एनीथिंग, एंड द रिवर्स विल ऑल्सो हैपन, कि ब्लॉकचेन विल एम्पावर AI ऑल्सो. So we're talking of this cycle now. We are talking purely in terms of the markets and the pricing. Yeah. So that's what I'm saying. Okay. You think there is still big upside if you are picking a product which will be useful. अगर आप attention नहीं करोगे, एक मूवी, ठीक है,
पुष्पा एक हफ्ता ही चल सकती है, पूरे साल नहीं देख सकते आप पुष्पा को, ठीक है। पुष्पा बुरी मूवी नहीं है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ मनी। आई डोंट नो योर व्यूज, पुष्पा मैंने नहीं देखी बाय द वे, इसलिए बोल रहा हूँ। पर कोई भी मूवी हो वो एक हफ्ता चलेगी, तो आप उसको बुरा बोल दोगे क्या? मैं बोलूंगा अरे वो अगर, पर अगर अपना आप काम कर लेती है, वो अलग एग्जैक्टली तो जो अलग काम चीज है। करेगा, हाँ। अगर वो मीम कॉइन होगा तो वो हफ्ते के लिए चलेगा, एआई का चल गया, खत्म हो गया। अब कुछ नया एआई लाएगा, जैसे कोई एआई आता है प्रोजेक्ट क्रिप्टो में जो वीडियोस को टैग कर सकता है ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल को, मेरे हिसाब से बहुत चलेगा। पर अगर उसने इनोवेट नहीं किया और ऐसे और 50 आ गए, जो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो इज ओपन सोर्स, तो फिर उसकी वैल्यू वापस डाउन जाएगी। सो ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू इज कि आई नो व्हाट यू आर आस्किंग। द बिगेस्ट अल्फा इज दिस, अल्फा ये है कि मार्केट को ऐसे देखना बंद करो। अगर आज तक ये नहीं सीखे इस साइकिल में कि बिटकॉइन खुद का मार्केट है, सोलाना खुद का मार्केट था, मीम कॉइन खुद के मार्केट थे, अगर ये नहीं सीखा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन ही नहीं सीखा इस ये लास्ट 1 साल में, और फिर भी उसी ओल्ड माइंडसेट से काम करते रहे और उसी माइंडसेट से आगे बढ़ोगे कि मार्केट में क्या होगा। मार्केट नाम का वो चीज है नहीं भाई। हर एक प्रोजेक्ट अपना कुछ लेके आता है, हर एक सिंगल प्रोजेक्ट, हर एक L1 कुछ इनोवेशन लेके आता है। आपको व्यू बनाना पड़ेगा, क्या वो इनोवेशन अभी जरूरत है क्या। मीम कॉइन लास्ट 6 महीने में लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, फंड्स चालू हो गए थे, लोगों ने पैसे बनाए हैं, पर ओनली प्रोबेबली 0.1% लोगों ने। सेम चीज सोलाना और स्टिल टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन, पर आज आधे भाव में मिल रही है आपको। Is I mean, let's straight question. Solana at 135, I'll buy good price. व्हाट आई थिंक इज साइकिल में सोचना ही पहले तो रिग्रेसिव है। साइकिल का मतलब जो बस वही घूमना, गोल गोल घूमना, दैट्स नॉट हाउ स्टार्टअप्स वर्क। आई थिंक क्रिप्टो आर मैच्योर। आई थिंक लास्ट 1 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। आई थिंक क्रिप्टो चेंज हो रहा है। क्रिप्टो अभी वो टीनेज उम्र से गिरते 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 उठते अभी एक स्टेज क्रॉस कर रहा है, वो कमिंग ऑफ एज हो रहा है क्रिप्टो का। तो वो ऊपर नीचे तो हमेशा होता रहता है, बट ओवरऑल आई डोंट बिलीव वो साइकिल वाला थियरी नहीं चलेगा। जो साइकिल वाला थियरी शेयर मार्केट में चलता है उतना चलेगा। जैसे ग्लोबल लिक्विडिटी, शेयर मार्केट आज डाउन है, टैरिफ की वजह से सब कुछ डाउन है, तो वो सब डाउन होगा तो वो भी क्रिप्टो भी नीचे जाएगा। पर क्या वो फिर रेडिफाई में साइकिल क्यों नहीं बोलते उसको? बोलने के लिए उसको भी बोल सकते हो साइकिल। तो मैं वो बोल रहा हूँ, वो साइकिल जिसको क्रिप्टो स्पेसिफिक वाली साइकिल की बात कर रहा हूँ, वो खत्म है मेरे हिसाब से। ओवरऑल दुनिया वाली जो साइकिल बोलते हो, हर कोई एसेट के साथ जो होती है साइकिल, हमेशा रहेगी, आज भी कभी भी रहेगी। वो M2 ड्राइव करता है, वो मनी सप्लाई ड्राइव करता है, तो वो तो रहने वाली है। वो शेयर में भी लागू पड़ती है, वो क्रिप्टो में भी पड़ेगी, कंट्री में भी पड़ती है। इफ यू वांट दैट थिंग, यस, कितना ऊपर जाएगा बहुत, पर मेरे हिसाब से मैं इसमें टाइम बर्बाद कम करता हूँ। मुझे लगता है ये बर्बादी का टाइम है, क्योंकि कौन से मैक्रो इन्वेस्टर के लैंग्वेज में, या आप एक बंदा बता दो जो मैक्रो एक्सपोर्ट हो, जिसमें ये टैरिफ पैरामीटर था, जिसमें जापान का रेट पैरामीटर होता है। आप मैक्रो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मैक्रो इन्वेस्टिंग ओवरऑल कितना भी डालो, एक और चीज आ जाती है, पॉलिटिकल चीज आ जाती है, या फिर कुछ वो चीज जो, तो समझ रहे हो। तो मुझे ये थोड़ा बहुत ज्यादा इन माई लैंग्वेज ओवरऑल पता रहना चाहिए। और दूसरा आपका टाइम फ्रेम, जैसे हमने बात किया था, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर टाइम फ्रेम। व्हाट इज द टाइम फ्रेम, एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। So you think currently is a good time to enter the market? In altcoins, yes. In I'm altcoins. not saying great time, but good time, yes. So that gets me to the last section of this topic of our discussion. When do you know when to buy the dip, or when not to catch a falling knife? Okay. First thing is, irrespective of market, you should have some valuation in mind. This is the best thing as an investor you can do. कोई भी चीज आपके सामने रखी जाए, जो मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बहुत टाइम से करना ट्राई कर रहा हूँ, कि जब भी कोई टोकन लॉन्च होता है ना, उससे पहले मैं अपने दिमाग में वैल्यूएशन बनाने की ट्राई करता हूँ। कोई तो डिसाइड करता है, राइट? कभी फाउंडर सीड स्टेज में फाउंडर बोलता है मेरी वैल्यूएशन ये है, इको में आप जाओगे तो आपको वैल्यूएशन आएगी ये $20 मिलियन में। वो फिगर कहाँ से आया? वो क्यों 25 नहीं है, या वो 40 क्यों नहीं है? आपने कोई डील देखी इको में, लीजन में, स्टार्टअप में, कहीं पे भी, तो वो अगर ये सब क्वेश्चंस पूछना चाहिए। उससे क्या होता है, इट्स टू स्टार्ट विद दैट वैल्यूएशन, फिर उसके साथ आप कंबाइन करोगे आपका टाइम फ्रेम, उसके साथ आप कंबाइन करोगे मार्केट सेंटिमेंट। जैसे अगर मेरी वैल्यूएशन ये है कि सोलाना इज ए गुड ब्लॉकचेन और अभी उसकी कंपटीशन अच्छी है, तो जो चीज मुझे हफ्ते पहले 200 पे थी, तब हुआ है ज्यादा 7 दिन का फर्क है, मुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा है आज। अगर आपने सोचा था 200 पे सोलाना अच्छा है या ओके है, तो 130 पे तो वो बहुत अच्छा हो गया। तो वैसे जब सोचोगे
क्योंकि तो बट देन डू यू वेट फॉर, बिकॉज देन तो फिर हम बोलेंगे नहीं, 150 पे भी अच्छा ही था, क्या 160 पे भी अच्छा ही था। इसीलिए आप यू शुड देन टेक इट। आपका वैल्यूएशन क्या था एंड हाउ मच ड्राई पावर यू हैव, हाउ मच वांट टू कीप। तो बाइंग द डिप जो है ना वो एक प्रोसेस है, जैसे ग्रोथ एक प्रोसेस रहती है। बिटकॉइन 16 पे भी अच्छा था, 30 पे भी अच्छा था, 50 पे भी अच्छा ही था, राइट? क्योंकि हर एक लेवल पे तो वैसा ही हर किसी के एसेट के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या, 16 पे लिया तो 50 पे नहीं ले क्या? उस टाइम पे रिस्क कम हो जाता है। तो आप जो 16 पे बिटकॉइन ले रहे थे ना, तब एफटीएक्स क्रैश हुआ था, तब बाइडेन की सरकार थी, बिटकॉइन का हर कुछ नेगेटिव दिख रहा था, माइनर भी बेच रहे थे, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे। आपको पता नहीं था कि बिटकॉइन 16 से 30 जाने में 1 साल लगेगा या 3 साल लगेगा। जब आप 50 पे बिटकॉइन ले रहे थे, आपको ऑलमोस्ट पता था कि ट्रम्प जीतने वाला है और वो बिटकॉइन पॉजिटिव प्रेसिडेंट है, तो आपका रिस्क बहुत कम हो गया था। ट्रम्प जीतने के बाद आई डोंट नो एग्जैक्टली दिस फिगर कोट मत करना, ट्रम्प जीतने के दूसरे दिन आई डोंट नो क्या बिटकॉइन का प्राइस था, ठीक है, अब मैं भूल गया अभी, ठीक है, पर लेट्स अज्यूम कि वो 60 था, लेट्स अज्यूम, हाँ 65-70 के बीच में ही तो था। लेट्स, हाँ, तो उस दिन आपको पता था कि ये प्रेसिडेंट ने हर जगह पे बिटकॉइन की बात की है और वो जीत भी चुका है, तो आपका रिस्क बहुत कम हो गया है। तो एग्जैक्ट वही पे बोल रहा हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड वैल्यू क्या है। तो अगर आप बाय द डिप जैसे करते जाते हो, अभी आप जैसे सोलाना की बात कर रहे हैं हम, तो उसको अच्छा, वो अच्छा कॉइन है, बात करते हैं, तो क्या क्या एक है, हफ्ते से मेरे को 35% डिस्काउंट मिल रहा है, नंबर 1, दैट्स गुड थिंग। व्हाट इज द अदर थिंग? माइनस आई वांट यू टू स्टार्ट डिस्कसिंग, जैसे 4 दिन पहले जब सोलाना 160 था, चलो 160, व्हाट इज द थॉट? So let's take step by step. No, let's step by yeah. 200 पे we thought, or the discussion, I assume that you are saying Give Solana me is a a good point buy. and then we can, then otherwise we will keep on discussing point. Give me a point. 200, 160. At 200 Solana you think is a decent buy? Depends on what condition. अभी एक हफ्ते पहले की बात है। Here is the thing. 200 पे what was the Solana? As an investor, you are getting paid for the future. जो करंट में उसका प्राइस हो गया, तो फ्यूचर में क्या रहा है? अभी अब मार्च 1 को सोलाना का 1.6 बिलियन डॉलर का अनलॉक हो रहा है। जिन लोगों ने 60 पे सोलाना लिया है ना, वो लोगों को 1.6 ह्यूज फिगर है, बट वो फिगर कंपेयर टू मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं था। सोलाना का मार्केट कैप से कंपेयर किया जाए तो फ्यू परसेंटेज पॉइंट है। तो अगर एक ही दिन में इतना बड़ा अनलॉक हो रहा है, तो व्हाट इज द रिस्क आई एम टेकिंग? ओवरऑल आई थिंक इज नॉट अ रिस्की थिंग, बिकॉज मार्केट कैप के हिसाब से वेरी फ्यू परसेंटेज है, राइट? छोटा सा परसेंटेज है मार्केट कैप के हिसाब से, बट एज ए एब्सोल्यूट वैल्यू वो अगर 2 दिन में डंप होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। यहाँ पे आप बात कर रहे हो सोलाना की वॉल्यूम और लिक्विडिटी की, तो आप एक ये रिस्क है, राइट? फर्स्ट थिंग, राइट? 200 पे आप ये सोच रहे हो। सेकंड थिंग, 200 पे अभी आपने देखा हुआ है कि ट्रम्प मिलानिया कॉइन ने पूरा लिक्विडिटी सक कर लिया है। तो मैं नेगेटिव पॉइंट्स पे ले रहा हूँ, ठीक है? हम दोनों साइड देखेंगे। अभी आप देख रहे हो कि यार जब पहला ट्रम्प कॉइन आया ना, तो पहला चीज बहुत पॉजिटिव था कि यार ट्रम्प कॉइन पॉसिबल ही सोलाना पे था और कहीं जगह पॉसिबल भी नहीं है। किसी को भी आज मीम कॉइन या बड़ा कुछ करना हो सोलाना के अलावा कर नहीं सकता वो आज। गुड थिंग, ट्रम्प कॉइन में कुछ घंटों में मिलियंस ऑफ डॉलर, आई थिंक, आई डोंट नो, मैं फिगर भूल गया, मूनशॉट में मेनी मिलियंस ऑफ पीपल डाउनलोडेड दैट ऐप। यह किसी भी ब्लॉकचेन में पॉसिबल ही नहीं है। आपने दुनिया को सिखा दिया। ओके निशाल, अब ये अब नाउ सॉरी, मैं नेगेटिव पॉइंट मिला था, तो एक लिक्विडिटी है। अब वो पूरा का पूरा कॉइन जो है ना, वो ऑलमोस्ट लेट्स अज्यूम 70% डाउन आ गया है। ट्रम्प को मिलानिया ने और बंदा कर दिया, मिलानिया कॉइन ने। और गंदी बात, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने ये कर दिया है, तो 2 चीजें हुई, गन की ऑलमोस्ट अलाउड हो गई। उस दिन अगर आप, मैंने ट्वीट भी किया हुआ था और लोग भी कर रहे थे बहुत सारे, ऑलमोस्ट क्राइम बिकेम इलीगल, और आपने इफेक्ट देख लिया। राइट नाउ एज ऑफ टुडे दैट इज कल्मिनेटिंग एट लिब्रा। आई डोंट नो इट हैज डन येट। मुझे लगता है कान्या वेस्ट का भी अभी कॉइन आने वाला है, तो आई डोंट नो वो स्टोरी, अभी तो वो बननी बाकी है। बट अभी जहां बैठे हैं हम, वी एवरीबडी इन क्रिप्टो इज लाइक, आई वुड से 90% सेंटिमेंट इज बैड। ऑल दोस पीपल हु वर इवन पॉजिटिव अबाउट ट्रम्प कॉइन जब लॉन्च हुआ था सोलाना के, they don't want anybody to launch a coin like this. These are the negative things Solana mein. What else is negative? What else is negative is this thing. We are now about to get Solana level blockchains. We already have Sui and Aptos, and we are almost about to get a decent blockchain in terms of Mega ETH Monad. We already, तो वो already आपको मिला 2-4 और already move जैसी हो चुकी है L2s, जो they are combining Ethereum L2 and SVM. तो इसका मतलब जो सोलाना का जो किंग पोजीशन था ना, कि यार ये टीपीएस से हो ही नहीं पॉसिबल, दूसरा देयर वाज नो सेकंड नंबर 2, अब वो नहीं रहा। तो ये हुए सोलाना के नेगेटिव पॉइंट्स। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि भाई कितना आप नेटवर्क इफेक्ट को वैल्यू करते हो। एक कॉइन ने बहुत बहुत डिफिकल्ट है क्रिप्टो
वो बाउंड्री जो है ना क्रिप्टो की, वो जनरली लोग पुश नहीं करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प कॉइन, बिकॉज ऑफ दिस गैम्बलिंग, बहुत सारा वो हो चुका है। दिस आर द नेटवर्क इफेक्ट ऑलरेडी है। सेकंड ये भी है कि परमिशनलेस नेचर है। सोलाना क्या कर सकता है जिसमें क्या, एक रोड पे कोई अच्छा रोड बनाया सोलाना है, उस पर कोई फास्ट गाड़ी चलाए तो क्या वो रोड की गलती है? कोई रेकलेस गाड़ी चलाए, बट अभी चल रही है, चिड़ तो चढ़ती है लोगों को, क्या इस रोड पे बहुत गंदगी हो रही है, बहुत रेकलेस हो रहा है, क्योंकि रोड अच्छा बनाया है। तो आपको ये गलत, ये आपको सेपरेट करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में जो सेपरेट मैं कर रहा हूँ, वो उस पे वो रेकलेस गाड़ी चल रही है, नो ब्रेक्स गाड़ी चल रही है, कोई रूल नहीं है स्पीड का, क्योंकि रोड इतना अच्छा है ना। थर्ड थिंग आपको क्या, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हो, डू यू बिलीव कि सोलाना में इनफ डेवलपर्स है जो अच्छे ऐप बना रहे हैं? यस, या आपका यस? अगेन आई ऑल्सो बिलीव दैट। नाउ यू वे दैट। अब मैं जब वे करता हूँ तो मेरा क्या फ्रेमवर्क करके नहीं, अब ये दोनों सिंपल बनाने के लिए, अभी इससे कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है, आपको ये 25 पेज की रिपोर्ट की बात चल रही है, पर हम इसको सिंपल बनाते हैं। अब इसको सिंपलिसिटी आप क्या करोगे, सिंपल निकल के ये आ रहा है कि यार आई एम बुलिश ऑन सोलाना, मे बी बियरिश, क्योंकि एक चीज तो 3-4 दिन में खत्म हो रही है, 1.6, तो मे बी, तो वो मैं वो अनलॉक को अवॉइड कर सकता हूँ अगर मैं 200 पे बैठा हूँ तो। पर अगर वो 130 पे मेरा फिर उल्टा हो जाता है कि यार वो अनलॉक इतना बुरा भी नहीं है यार, 200 के लिए मेरे वो डेंजरस था, पर वो 130 पे वो डिरिस्क हो जाता है काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत, क्योंकि वैल्यूएशन अभी 35% लेस हो गई, कि वो अनलॉक जो मेरा डर था, अगर उसको आपने ऑलरेडी 35% लेस कर दिया, तो फिर मेरा आपने मैथ्स मेरा कम कर दिया, तो वही उस पॉइंट से नीचे, तो वैसे ही वो अनलॉक का भी फियर निकल गया। क्यों? क्योंकि 200 पे जिन्होंने 60 पे सोला उनको 3x मिल रहा था, 130 पे उनको सिर्फ 2x मिल रहा है, तो मेनी पीपल विल डिसाइड नॉट टू डू इट, सिंपल, राइट? तो डू यू अंडरस्टैंड कि वो वैल्यूएशन टाइम फ्रेम, अगर वो 2 दिन में मैं अनलॉक अवॉइड कर सकता तो मैं 200 पे बेचूंगा। चाकू है तो डर लग रहा था, बंदूक है तो डर लग रहा था, पर वो बंदूक को चाकू निकली बुरी तो है, पर बंदूक नहीं है यार, तो इट्स नॉट दैट, एट 130 इट इज नॉट दैट, तो आई विल प्रोबब्ली स्टार्ट डूइंग इट। इफ यू बिलीव के लॉन्ग टर्म आप बुलिश हो, तो इन लॉन्ग टर्म आई एम, तो आई विल बी फ्रैंक, आई एम सोलाना बुलिश, आई एम नॉट ए ब्लाइंड, it's an investing world, it's a cutthroat world. Yeah, things change tomorrow, you will be on it tomorrow, and you may change your opinion tomorrow. And I'll check it. I will use Megaith, I will use Monad, and if I think they are giving that seamless UX, और उनके पास कुछ नए ऐप्स है, उसमें सबसे बड़ा जो मेरे लिए सबसे मेरा जो सबसे बड़ा पैरामीटर क्या पता है, जो मुझे सोलाना के पास नेटवर्क इफेक्ट है, और मुझे पता है क्रिप्टो में नेटवर्क इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक ऐप की जरूरत है, और वो एक ऐप सुई के पास आ गया, एप्टोस के पास आ गया, मेगाइथ के पास आ गया, मोनाड के पास आ गया, तो आई थिंक दे कैन टेक वेरी गुड मार्केट शेयर आउट ऑफ सोलाना। राइट नाउ सोलाना होल्ड्स प्रोबेबली अराउंड 40% मार्केट शेयर इन ऑल ब्लॉकचेन्स, बाकी सब 60% में एक दूसरे से लड़ रही हैं। आई नो कि सोलाना के पास अभी राइट नाउ नेटवर्क इफेक्ट है, और वो नेटवर्क इफेक्ट को दूर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो लोग सोच रहे थे टीपीएस है, वो नहीं है, क्योंकि वो तो हाइजीन है भाई, वो तो 35 मार्क्स हो गया अभी, उससे तुम people do the changes, people change wallets when they get 10x value. सेम देने पे कोई नहीं चेंज करता। अगर मैं कोका कोला पी रहा हूं तो मैं सेम देगा तो मैं कुछ नहीं, कोई नहीं चेंज करता, किसी को चेंज इज अ डिफिकल्ट थिंग। एनी ब्लॉकचेन कमिंग एटलीस्ट हैज टू वैल्यू 2-3 टाइम्स मोर, कुछ वो 2-3 टाइम्स क्या हो सकता है, स्पीड नहीं है वो मेरे हिसाब से वो ऐप है। तो अगर स्मार्ट हो तो आप देख रहे हो कि पंप डाउन फंड या ऐसा कुछ नया चीज कोई ऐप लेके आ रहा है और वो यूज हो रहा है, तो I will move out of Solana. So to summarize, current situation where you think Solana is fairly valued and you should buy as of today. As of things may change tomorrow. Yeah. Things were different yesterday. At 138, at 138, you will buy the dip. Yeah, I'll buy the dip. And even if it goes to 110, you are still I'll okay. buy slightly more. You will buy. You will not sell. मेरा 2 दिन में हुआ तो, हाँ नहीं यार, मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है, बुरी खबर आ रही है, पर 2025 को मैं जैसे लिस्ट बना रहा था, क्या क्या हुआ। ट्रम्प कॉइन लॉन्च हो गया, ट्रम्प जीत गया, गैरी गेंसलर चला गया, क्या क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बातें चल रही है, रिजर्व की बात चल रही है, हमने विटालिक को कैंसिल करने की ट्राई कर लिया हमने। आई डोंट नो आपने वो नियर वाले बंदे को देखा, आई विल शुड नॉट से इन पॉडकास्ट, नियर वाले बंदे ने कुछ स्ट्रीमिंग किया, फिर मोनाड मेगाइथ सब्सट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है, अच्छी बातें भी बोल दूं, फिर क्या क्या हुआ, सीजी का कुत्ता चल गया, ठीक है, फिर डेविड पोर्टर ने अपने फॉलोअर्स को 4-5 बार लूट लिया, कान्या वेस्ट सोच रहा है कि
L1 लॉन्च करे तो आई मीन यार फिर क्या हुआ और कुछ याद आ रहा है? अमेरिका ने कुछ लॉन्च किया था यार, कुछ सिटकॉइन लॉन्च किया था, मुझे याद नहीं है। अच्छा, नो आइडिया। अरे सबसे बड़ा पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑलमोस्ट इम्पीचमेंट की स्टेज पे आ गया क्रिप्टो की वजह से, मिले उस पर केस चल रहे हैं। सो और क्या, तो मैं बोल रहा हूँ, और ये सब हुआ है ऑलमोस्ट सिर्फ फरवरी में, बाय द वे, 1 मंथ की बात कर रहे हैं। हाँ 3 हफ्ते में, पिछले 3 हफ्ते ये में। सब 3 हफ्ते। सो दैट इज क्रिप्टो। तो जस्ट डोंट लुक एट प्राइसेस, आई थिंक प्राइसेस शुड बी द लीस्ट थिंग टू लुक एट, हैव फन यार। फैंटास्टिक, चलो सही है, ठीक है। लॉट्स ऑफ लर्निंग्स टुडे, सीखो, अप्लाई करो, क्रिप्टो स्पेस अच्छा है, रहो, इट्स डिफरेंट, एंड enjoy the volatility, enjoy the ups and downs, and let's all Wagmi, we'll all make it together. Thank you. Bye. Bye.